डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो ये वर्क पावर एनर्जी क्लास 11th का दूसरा लेक्चर है एंड दिस इज रिलेटेड टू द एनर्जी। So you know what is energy? It is the capacity of a body to do work. Capacity, oblique ability of a body to do work is called energy. इससे पहले भी आपने ये पढ़ा है। So energy of a body is measured in terms of the total work done by the body. The energy is equal to total amount of work done by a body, right? So energy is nothing but it is amount of work done. So simple. इसके units और dimensions same होंगे, same as that of work, So अगर यूनिट की बात करेंगे तो जूल है इन एसआई सिस्टम और अर्ग इसका यूनिट है इन सीजीएस सिस्टम, राइट। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करेंगे, वर्क डन होती है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एनर्जी की भी वही यूनिट्स होंगे। सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क डन is equal to work done is equal to force into distance or displacement. Work done is equal to energy, so energy is equal to force के dimensions होंगे m1 l1 t minus 2, इसका l1 हुआ तो टोटल फॉर्मूला बन जाएगी m1 l2 t minus 2. So simple definition of the energy, and you know there are various forms of energy. Various forms of energy. Number one, you know, mechanical energy. नंबर सेकंड हम यहाँ पे लिख सकते हैं हीट एनर्जी। लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी। So these are various forms. There are various forms of energy. मैग्नेटिक एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, सो ऑन। पूरी डिटेल क्या लिखें ये आप जानते हो। मैकेनिकल एनर्जी है, हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, मैग्नेटिक एनर्जी है, इसी तरह से न्यूक्लियर एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है। देयर आर सो मेनी फॉर्म्स ऑफ द एनर्जी। नाउ here in this unit we are concerned with the mechanical energy, only concerned with the mechanical energy. तो क्या होती है मैकेनिकल एनर्जी?
It is the energy possessed by a body due to its position or motion. मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं. So it is energy possessed by a body due to its position और मोशन. तो यहाँ पे दो बातें आ जाती है. वन इज एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन and another is energy due to the motion. So we can write here mechanical energy is equal to, जो एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन होगी उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. जो ड्यू टू मोशन होगी इसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं. So we can write here mechanical energy is equal to potential energy plus kinetic energy. तो अगर हम अलग से इनको डिस्कस कर लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी की बारी हम लेंगे पहले. काइनेटिक एनर्जी मीन्स एनर्जी possessed by a body due to its motion. Energy possessed by a body due to its motion. So when a body is moving, that possesses what type of energy? That is kinetic energy. हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं. नंबर 1 एग्जाम्पल आपकी है flowing water. It can do the work. ये टरबाइन को रन कर सकता है. टरबाइन आर्मेचर को रन कर सकता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है. So it possesses what type of energy? Kinetic energy. इसी तरह से सेकंड एग्जांपल मूविंग व्हीकल. It possesses what? Kinetic energy. तीसरी बात हम विंड की बात करेंगे. It can exert a force on a body and the body is displaced. So it possesses what type of energy? Kinetic energy. इसी तरह से फोर्थ है that is मूविंग बुलेट की बात करेंगे. That possesses kinetic energy. और मूविंग हैमर that possesses kinetic energy. By that kinetic energy we can draw a nail into the wood. So that exerts a force on a body and the body is displaced. Right? These are known as the examples of kinetic energy. So in general you have to remember only one thing. All moving bodies possess energy known as kinetic energy. जो भी बॉडी इन मोशन होगी उसको काइनेटिक एनर्जी होगी. उसकी एनर्जी जो होगी दैट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी. नाउ व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी? इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी. Expression for kinetic energy. Expression. So consider a body which is initially at rest. That is U is equal to 0. A body which is initially at a rest. That means its initial velocity is equal to 0.
So we have considered a body which is initially at rest, right? That is, u is equal to 0. Now, when a force F is equal to F is applied on it, तो अब जब हम इस पे फोर्स अप्लाई कर लेंगे, दैट इज इक्वल टू एफ, द बॉडी गेट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ एस. कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? एस के बराबर. सो व्हेन ए फोर्स इज इक्वल टू एफ इज अप्लाइड ऑन इट, द बॉडी गेट्स displaced. Through S. Body gets displaced through S. Now, according to the Newton's law, F is equal to ma, where m is equal to mass of the body, where m is equal to mass of the body. So according to the equation of motion, we know v square minus u square is equal to 2as, right? Here u is equal to 0, implies v square is equal to twice as. Right? तो यहां से हम एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर लेंगे. सो एक्सेलरेशन विल बी v square divided by 2s. v square divided by 2s. तो अब आपका फोर्स होगा m मल्टीप्लाइड बाई v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2s, राइट? जब हमने फोर्स अप्लाई किया, बॉडी इज डिस्प्लेस्ड, दैट मीन्स वर्क इज डन. सो वर्क डन किसके बराबर होगा? फोर्स इनटू डिस्टेंस. एक्चुअल में ये होगा एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस ऑफ थीटा. As the body is displaced in the direction of the displacement, so here theta is equal to 0, implies cos theta is equal to cos of 0 degree, that is equal to 1, right? So W is equal to, it is Fs, or W is equal to, F के बदले में हम डाल सकते हैं mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2s multiplied by s और s कैंसल हो जाएगा. So we get 1/2 of mv square, 1/2 of mv square. As you know, kinetic energy is equal to the total, or energy is equal to the total amount of work done. What is the total amount of work done here? 1/2 of mv square. Therefore we can write here kinetic energy is equal to 1/2 of mv square. So this is the expression for the kinetic energy of a body, 1/2 of mv square. Again it is equal to the work done. So इसका यूनिट क्या होगा, इसके डायमेंशंस क्या होंगे? सिंपल सी बात है, इसका यूनिट होगा जूल इन एसआई सिस्टम. इन CGS सिस्टम इसका अर्ग यूनिट होगा CGS यूनिट अर्ग. डायमेंशनल फॉर्मूला इसकी फिर से होगी एनर्जी की, दैट इज m1 L2 T -2.
that is same as that of the work done. So these are known as dimensions of kinetic energy. So what is the nature? क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? पहला पॉइंट हम यहां पे लेंगे, kinetic energy is equal to 1/2 of mv square, which is equal to 1/2 of m into v dot v, क्योंकि हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर with itself is equal to the square of its magnitude. Square of its magnitude. तो हम काइनेटिक एनर्जी को क्या डॉट प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट से? डॉट प्रोडक्ट से. Therefore it is a scalar quantity. तो क्या है काइनेटिक एनर्जी? स्केलर क्वांटिटी. नंबर सेकंड, 1/2 of mv स्क्वायर, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी है. फर्स्ट इट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द बॉडी. मास ऑफ बॉडी, राइट. सेकंड पॉइंट, नॉट द वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी तो होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है, जिसकी डायरेक्शन भी होती है, लेकिन यहाँ पे तो ये स्केलर क्वांटिटी है. So we will write here it is only the magnitude of the velocity, that is speed of the body. It depends upon speed of body. So remember, not on the velocity of a body, but it depends upon the speed of the body. Right? चलो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेंगे. ये मान लीजिए a body moving on a circular path with a uniform velocity, with a uniform, so this is uniform circular motion. हम यहां पे लेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट. मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, बट मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी मीन्स स्पीड. तो अगर हम यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को देख लेंगे तो हर पॉइंट पे तो ये चेंज हो जाती है, हर पॉइंट पे ये चेंज हो जाती है. सो v इज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट. जब v कांस्टेंट होगा तो व्हाट अबाउट द काइनेटिक एनर्जी? मास ऑफ द बॉडी हम m लेंगे. व्हाट अबाउट द काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी that will remain same. So kinetic energy of a body having uniform circular motion is constant. Kinetic energy of a body moving with a constant velocity or having uniform circular motion, that is constant. Instead, अगर हम वर्टिकल सर्कल की बात करेंगे, वर्टिकल सर्कल की, ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये लोवेस्ट पॉइंट है. यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है और यहाँ पे मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होती है. यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, ये आपने पढ़ा होगा वर्टिकल सर्कल, और यहाँ पे मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी. सो वर्टिकल सर्कल में इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है, बट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इट डजंट चेंज. नेक्स्ट पॉइंट, अगर मास को देख लेंगे तो कांस्टेंट है, अगर स्पीड को देख लेंगे तो कांस्टेंट, सॉरी पॉजिटिव. तीसरा पॉइंट हम यहां पे लेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 of mv स्क्वायर. मास ऑलवेज पॉजिटिव. अगर स्पीड की बात करेंगे तो ये ऑलवेज पॉजिटिव. तो यहां से हमें क्या मिलता है? काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव.
राइट। फोर्थ पॉइंट हम यहां पे लेंगे, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन frame of reference। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ, कैसे एक्सप्लेन कर लेंगे, तो हम टू पैसेंजर्स को लेते हैं, टू पैसेंजर्स which are sitting in the moving bus, sitting in the moving bus, right। तो अगर इनको रिलेट कर लेंगे विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, दे आर एट रेस्ट, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी जीरो। अगर इफ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, रिलेटेड टू ईच अदर, क्या उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर? नो, दैट मीन्स दे आर एट रेस्ट, दे आर एट रेस्ट। When they are at rest, that means their kinetic energy is zero. But at the same time, when they are related to the outside surroundings, when they are related to outside or road, then both of them are in motion, और उनकी स्पीड क्या होगी? इक्वल टू द स्पीड ऑफ द बस, इक्वल टू स्पीड ऑफ बस। तो क्या उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी? दैट मीन यस दे विल पोजेस काइनेटिक एनर्जी। सो यही दो पर्सन्स, पहली सिचुएशन में इनकी काइनेटिक एनर्जी नहीं है, दूसरी सिचुएशन में इनकी काइनेटिक एनर्जी है। व्हाट इज द डिफरेंस? सो इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम टू विच दे आर रिलेटेड, रेफरेंस पॉइंट टू विच दे आर रिलेटेड। पहले केस में हमने इनको एक दूसरे के साथ रिलेट किया, दे आर एट रेस्ट, लेकिन उसके बाद हमने आउटसाइड द बस इनको रिलेट किया, दे आर इन मोशन। सो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक रेफरेंस प्लेन के साथ रिलेट कर लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी होगी, दूसरे के साथ कर लेंगे तो नहीं हो सकती है, राइट। तो इसी तरह से हम कहते हैं इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू विच दे आर रिलेटेड, राइट। So this was your kinetic energy expression units and dimensions and the factors on which it depends. So इंशाल्लाह कल हम डिस्कस कर लेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके, थैंक यू।